What is the meaning of communication? मैम कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विजुअल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, जिसके थ्रू जो मार्केटर है वो कन्वे करता है या इम्पैक्ट करता है कस्टमर को, ताकि कस्टमर अपने नीड को फुलफिल कर सके और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कम्युनिकेशन जो है बेसिकली वो दैट इज कन्वे द मैसेज, दैट इज बेसिकली फॉर इन्फ्लुएंस consumers toward the product and services. We can basically communicate, we can give the information, we can give the message by using symbols, by using advertisement, and we can also use all 5 elements, ठीक है, elements of promotion. So ये होता है आपका communication, ठीक है। elements of the communication जो हम लोगों ने already discuss कर लिया, advertisement, personal selling, direct selling, public relation and publicity. So today we are going to complete that what are the basically strategies of the communication mix in the services, what are the basically strategies कौन-कौन से हैं, ठीक है। So first we need to complete the strategy and after that we'll again move toward last class में we didn't cover internal and external communication, raise your hand. Internal and external communication. मैम अच्छा हाँ, यस अक्षय बोलिए। अक्षय यस मैम जो एम्प्लॉयर एंड यस मैम, हाँ मैम जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच होता है उसको इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और जो कंपनी एंड कंज्यूमर के बीच होता है उनको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या होता है कंपनी और कंज्यूमर के बीच में? हम अगर कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है किसी भी सर्विस से, मैम इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कंपनी और कस्टमर के बीच में डायरेक्टली होता है। इसमें एडवर्टाइजिंग को भी कंसीडर करते हैं हम लोग, या फिर प्रमोशन मिक्स के जितने स्ट्रैटेजीज हैं उसको भी इसमें कंसीडर करते हैं। ओके, so internal external communication is completed. Write the topic लिखिए सारे बच्चे, write the topic, communication strategies in service marketing, right? Communication strategy in services, communication strategy in services. क्या है communication strategies? What are those communication strategies? So before understanding the terms, we all know that service is intangible. But when we are promoting and when we are basically influencing the consumers toward our service, we need some tangible cures as well. Means we just need to basically show the tangible thing, which we already discussed, I guess. But right in this, that intangible nature of service performance. The first strategy is intangible nature of service performance. Intangible nature of service performance. ठीक है, service are basically performances. That is not an object. We cannot understand what kind of quality is there, what kind of services they are providing, and the service is totally dependent upon the trust, है ना? So in this scenario, what we just need to do, we just need to use the tangible cues. Okay, the service provider can use the tangible cues for advertising campaign, like if they want to advertise of the law firm. Okay, if they want to show that, they can use the chairs and they can show it in like how there is a presentation here, how the chairs and everything is arranged in the courtroom, right? So if someone was basically advertising about what we can say that courtroom, in that case we can show the chairs and all. Okay, judge, position of judge, like this we can show, we can use these things in billboards as well. So in advertisement, we have to use some tangible cues, because the service performance is the kind of thing which we can experience, which we cannot determine it. ठीक है, उसको determine नहीं कर सकते object की तरह. तो इसमें कुछ points लिख लीजिए. Since the services बस ऐसे लिखिए, services are performance rather than object. Service are performance rather than object. Service or performance rather than object. So it is difficult to
tell or communicate customer about its benefits. Services are performance rather than the object. So it is difficult to communicate the customer or tell them about the benefits. ठीक है, यानी कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करके उसको बेनिफिट्स बताना अबाउट द सर्विसेज, इट इज लिटिल बिट इम्पॉसिबल. ठीक है, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क. So what service provider can do? तो आगे लिखिए, जो service provider can use the tangible clues, या tangible cues is CUES, cues, tangible cues, tangible cues, tangible cues, 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 tangible cues, wherever possible, in their advertising campaign, ठीक है. Means what the service provider can do, they can use the tangible cues for their advertisement campaign. आगे लिखिए, especially advertising campaign के बाद लिखिए especially for low contact services, where very few tangible elements are involved, basically involved. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमें बेसिकली टैंजिबल चीजों को यूज करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के लिए, और खासकर उन सर्विसेज में जहां पर लो इन्वॉल्वमेंट है आपका, और जहां पर बेसिकली जो कॉन्टैक्ट है वो हाई होगा, हाई कॉन्टैक्ट इज देयर. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि टैंजिबल जो चीजें बहुत कम अवेलेबल है, जैसे टीचिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब जो होते हैं बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, राइट. यहाँ पर टैंजिबल चीजें कम होती है. बट व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट एनी इंस्टीट्यूट, अबाउट एनी हॉस्पिटल, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सम टैंजिबल क्यूज, राइट, लाइक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर वगैरह, चेयर्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो शो सम एटमोस्फेयर, जैसे वहां पर एरिया किस तरीके का है, गार्डन एंड ऑल, जैसे इस तरीके की चीजें क्या कर सकते हैं, हम शो कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आगे लिखिए, यू कैन राइट अबाउट द लॉ फर्म. A large law firm show the picture of empty chairs, ठीक है, empty chairs to draw attention to its trial lawyers. ठीक है, यानी वहां पर हम वहां के चेयर्स वगैरह शो कर सकते हैं, ज्यूरीज और जज के चेयर्स वगैरह शो करेंगे, वहां पर ट्रायल कैसे होता है, लाइक तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे, अट्रैक्ट करेंगे कंज्यूमर को. ठीक है, देयर इज एनी केसेस एंड ऑल, ठीक है, यू कैन आस्क द पर्टिकुलर लॉ फर्म टू सॉल्व दैट. तो ये बेसिकली पहले रिपीट कर दीजिए ना एग्जांपल. यस मैम, उसके पहले का. हाँ, a large law firm showed a picture of empty chairs to draw attention to its trial lawyers. ठीक है, to trial lawyers. या फिर ये कह सकते हैं ना कि जैसे अगर हम कभी भी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट भी लेते हैं, तो वहां का भी हम बिल्डिंग, वहां पर लाइब्रेरी वगैरह से शो करते हैं ना, तो ऑल दीज आर टैंजिबल क्यूज, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, customer involvement in production. ठीक है, इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज, जहाँ हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर जो है वो काफी ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर है, दे आर ऑलवेज इन द सर्विस एनकाउंटर सिचुएशन वेयर दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, वहाँ कस्टमर जो है, दे आर बेसिकली कंसर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द सर्विस डिलीवरी एंड कंजप्शन. लाइक जहाँ हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, ठीक है, ऐसे केस
में जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विस ले रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं रिस्क एसोसिएटेड होता है अबाउट द परफॉर्मेंस, अबाउट द क्वालिटी, दैट दे विल बी सेटिस्फाइड और नॉट। तो ऐसे केस में सर्विस कैसे डिलीवर किया जाएगा, कैसे उसका कंजम्पशन होगा, तो इस तरीके से आप रिस्क में एक तरीके से एसोसिएटेड रहते हो इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज। सम टाइम कभी कभार जो इस तरीके के रिस्क होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे इस टाइप की जो चीजें होती हैं, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिस्क, मतलब हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क, जैसे आपने 500 रुपए लगाया एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस, राइट। साइकोलॉजिकल रिस्क, आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो, 3 घंटे की जैसे मूवी देख रहे हो और वो इतना सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, बेटर नहीं लग रहा, उसकी स्टोरी अच्छी है, तो लाइक यू आर बेसिकली इन द एट दैट टाइम आपको साइकोलॉजिकल रिस्क, मतलब आप टेंशन ले सकते हो, बिल्कुल आपको वेस्ट ऑफ टाइम लग सकता है। तो यू आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन द, क्या कह सकते हैं, हाई रिस्क, यहाँ पर आप रिस्क में रह सकते हो, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल रिस्क। तो ऐसे केस में, दिस केस इन मतलब यू कैन टेल द कंज्यूमर अबाउट व्हाट विल बी हैपन, लाइक यू कैन इन्फॉर्म देम द मैसेजेस आप दे सकते हो, ठीक है, आप रूल्स रेगुलेशंस बना सकते हो, उनको बता सकते हो कि मतलब कस्टमर्स को यू कैन टेल अबाउट द कि ये डेंजर, ये सिचुएशन अराइज हो सकता है, तो पहले से आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिए अबाउट द what kind of service and delivery you are going to give them, ठीक है, and what kind of risk is associated with that. If you are satisfied, if you are okay, then you can move towards purchasing or consuming that particular service, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आप क्या कर सकते हैं, और एक और चीज भी है कि अगर आपके कस्टमर बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व, मतलब कस्टमर के साथ आपका जो सर्विस है उसमें हाईली कॉन्टैक्ट सर्विस है, तो ऐसे केस में यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, दैट यू कैन ऑल्सो ट्रेन द एम्प्लॉइज दैट कि आप जो कस्टमर्स हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज कीजिए। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी होगा, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन, इन दिस केस व्हाट विल बी हैपन, इससे 3 लाइन 4 लाइन लिख लीजिए, फिर मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। आई थिंक बढ़ते हैं आगे, इसमें लिखिए इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज, इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज customers are often concerned about the risk associated with service delivery, and consumption, risk associated with service delivery and consumption. आगे लिखिए, in high contact services customers are often concerned about the risk associated with the service delivery and consumption, ठीक है। Sometimes these risks are financial or psychological in nature, financial and psychological in nature, but there can also be physical risk, there can also be physical risk, as in many outdoor sports, and organized adventure, activities like rock climbing, skiing, many outdoor sports and organized adventure activities like rock climbing, skiing, water rafting, ठीक है, water rafting. These provider of such services have both these provider of the provider of such services, the मैम provider of sometimes such, से बता दीजिए। sometimes, okay, Yes. sometimes, एक मिनट, सब लोग sometimes these risks are financial or psychological in nature. Sometimes these risks are financial and psychological in nature, but there can also be physical risk. There can also be physical risk, as many outdoor sports, and organized adventure activities, like rock climbing, skiing,
rock climbing is skiing, water rafting, water rafting. The provider of such services, the provider of such services has both legal, and a moral responsibility, both legal and a moral responsibility to educate their clients, to educate their clients, to educate their clients. ठीक है, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कंजप्शन हो रहा है बेसिकली यहाँ पर हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज है, यानी जो कंज्यूमर है वो पूरा इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में। जैसे कि यहाँ पर हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज में ऐसा बोला जाता है कि रिस्क एसोसिएटेड है, जैसे फाइनेंशियल रिस्क इज देयर, साइकोलॉजिकल रिस्क इज देयर, बट एज वेल एज फिजिकल रिस्क इज ऑल्सो अटैच्ड। अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आपका कोई एडवेंचर के लिए आपने कोई पार्क वगैरह ओपन कर रखा है, ठीक है, वहां पर आप बेसिकली राफ्टिंग करवा रहे हो या फिर आपके वहां पर स्विंग्स वगैरह, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसे केस में हाउ टू यूज दूस थिंग्स, यानी वाटर राफ्टिंग कैसे करना है, रॉक क्लाइंबिंग कैसे करना है। अगर आप इस तरीके से स्काइंग, ड्राइविंग, डाइविंग हो गया, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर फिजिकल रिस्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड। So how we can communicate about this risk to the consumers? We just need to educate the client about it. We just need to tell them about how much danger is associated with that, and as well as we just need to train the employees that इन तरीके के जो services है उसमें आपको experienced person चाहिए होगा, trained person चाहिए होगा, जो कंज्यूमर को बेसिकली एजुकेट भी कर सके और साथ साथ सर्विस भी प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके। तो इसको हम कहेंगे कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्शन। इस तरीके की चीजों में तरीके में आप कौन सी स्ट्रैटेजी, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करोगे, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, क्लाइंट की एजुकेशन के बारे में, एंड साथ साथ यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट अबाउट द डेंजर एंड अबाउट द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर services. Like psychological risk is there, financial risk is there, maybe you will pay 500,000 rupees for that, maybe you will feel tense after using that particular services or after getting that services, and the physical risk is also associated, some accident might be happen by after using that particular service. So you just need to communicate about all these things, and for communication what you can use the tangible proof. So these are the communication strategy. फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट दोनों क्लियर हुआ, बोथ पॉइंट दोनों क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी लिखिए। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग सर्विस ऑफरिंग, इवैल्यूएटिंग सर्विस ऑफरिंग, इवैल्यूएटिंग सर्विस ऑफरिंग। As we all know that service is totally dependent upon the experience and performance. How we can evaluate that this particular service firm is providing better service as comparison to the other? ठीक है, it is very much difficult for this situation. इस situation में आप सर्विस को, प्रोडक्ट को तो मे बी आप क्वालिटी से एनालाइज कर लो, बट आप सर्विस को एनालाइज करोगे। इवैल्यूएटिंग द सर्विस ऑफरिंग में लिखिए, इवैल्यूएटिंग सर्विस ऑफरिंग में लिखिए, even if you understand that what a service is supposed to do, even if you understand what a service is supposed to do, you may have difficulty distinguishing one firm from another, and knowing what level of performance to expect from particular supplier, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आता है कि बेसिकली आप सर्विस को कैसे आप इन्फ्लुएंस होगे, क्या चीज देखोगे जो सर्विस में आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो सर्विस फॉर्म के टूवर्ड, ठीक है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट में तो चलिए ठीक है, उसके प्रोडक्ट की डिजाइनिंग देख के, उसकी लेबलिंग देख के, उसके कलर्स देख के मे बी यू विल अट्रैक्टेड, बट व्हाट यू विल सी इन द सर्विस में आप क्या देखिएगा जो अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज इसमें आप क्या देखिएगा, एक तो इसका ये कब का इसका रेपुटेशन, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ दैट फर्म का रेपुटेशन क्या है, उसके कितने कंज्यूमर्स हैं,
उसके फीडबैक क्या है बेसिकली, ठीक है। और साथ साथ में आप बेसिकली उसके बोल सकते हैं कि आप परफॉर्मेंस एक बार ले करके यू कैन justify that कि what kind of performance they are giving. So in short, if you want to take a service, if you evaluate that, you can use the consumers के feedback आप use कर सकते हो, reputation, trust use कर सकते हो उसका कि कब का basically वो firm है, ठीक है। और in short बस consumer के feedback and all इससे you can analyze the performance of the services, ठीक है। next yes Toshi, चलिए लिखिए इसमें। even if you understand what a service is supposed to do, you may have difficulty distinguishing one firm from another, and knowing what level of performance to expect from particular supplier, ठीक है, from particular supplier. Like in this case, how we can evaluate the service offering, यानी कि हम सर्विस को किस तरीके से evaluate कर सकते हैं. It is difficult to do this, difficult है, लेकिन still by using tangible वगैरह चीजें, कस्टमर के फीडबैक वगैरह को देखते हुए, ठीक है, रेपुटेशन को देखते हुए, we can easily evaluate the service form. But still the 100% you will never get the idea with these things. First you need to experience that, right? After experiencing, and experience आप कीजिएगा when the communication strategy is very strong of that particular service form. यानी जो सर्विस सेक्टर है या जो भी है उसका अगर कम्युनिकेशन जो या है या फिर प्रमोशन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आप अट्रैक्टिव टैंजिबल क्यूज तो यूज कीजिएगा ही, ठीक है. यू विल यूज द अट्रैक्टिव टैंजिबल क्यूज. साथ साथ यू कैन ऑल्सो हाईलाइट अबाउट द क्वालिटी. You can also give the assurance. You can also tell them about the customer feedback. ठीक है. You can also tell them. You can also tell them about the commitment. You can आप professionalism दिखाइए. मतलब हर तरीके से, मतलब आप advertisement कर सकते हैं, ठीक है. You can use the social media for the advertisement of the service firm. पहले क्या था कि I never saw any advertisement of schools, but nowadays the schools are also advertised. आप देखते होंगे billboards आपको मिल जाएंगे, फिर आप social media में you will find so many advertisements. So for evaluating the services, we can use the normal things, tangible cues, कितना attractive हो सके उतना use कीजिए, customer के feedback, ठीक है. You can show them, you can assure them about the performance, service performance के बारे में आप assurance दे सकते हैं, commitment दे सकते हैं. फिर आपने कितना पहले आपका सर्विस फर्म कितने सालों से चल रहा है, ट्रस्ट को लेकर के यू कैन टेल देम, यू कैन कम्युनिकेट द कंज्यूमर्स एज वेल. तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी कंज्यूमर जो है वो सर्विस ऑफरिंग को क्या कर सकता है, इवैल्यूएट कर सकता है, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो अट्रैक्ट देम बाय गिविंग सम बेनिफिट सच एज आपको जैसे होता है ना कि कोई सलून ओपन होता है तो 2 दिन का ट्रायल चलता है, तो यू दे कैन ऑल्सो गिव दैट, ठीक है. तो आप उनको प्रोस्पेक्टस वगैरह दे सकते हैं, आप उनको ऑफर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है. मतलब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अबाउट इट. ये आपके आ जाएंगे इस वाले पॉइंट में, स्ट्रैटेजी वाले में, थर्ड वाले पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट इज ये 3 जो स्ट्रैटेजी करवा दिया कंप्लीट, समझ में आया ये तीनों स्ट्रैटेजी क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में से. पहला जो स्ट्रैटेजी था क्या था, फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या था, intangible nature of service performance, ठीक है. सेकेंड स्ट्रैटेजी customer involvement in production. थर्ड स्ट्रैटेजी evaluating service offering. ओके, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक राइट. चार्ट कुछ चीजें को आप लिख लीजिए. फर्स्ट कुछ यहाँ पर बेसिकली मास कम्युनिकेशन मिक्स जो है उसके पॉइंट्स लिख लीजिए. कम्युनिकेशन मिक्स में पहला लिखिए
पर्सनल कम्युनिकेशन इसमें 5 पॉइंट होंगे। जो एलिमेंट्स मैंने बता दिया दैट इज द नॉर्मल एलिमेंट्स विच इज यूज्ड इन प्रमोशन मिक्स। अब कम्युनिकेशन मिक्स है, लगभग सेम ही है बट कुछ पॉइंट्स और एक्सटेंड हो गए हैं, तो इसको प्लीज एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा आप। पर्सनल कम्युनिकेशन में लिखे पर्सनल कम्युनिकेशन में किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग, फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल सेलिंग। इसी के अंडर में लिखते जाइएगा, 1 मिनट। पर्सनल कम्युनिकेशन में लिखे पर्सनल सेलिंग, टेली मार्केटिंग, customer service. Personal selling, telemarketing is something where we use just telephone for interacting with consumers, and we can give them, we can tell them about the deals and offers, right? So personal selling is the part of the personal communication. Personal selling, telemarketing. Next is customer service. Okay, customer service, because we are studying about the service marketing, customer service, and the last is word of mouth. Last one is word of mouth. Word of mouth. Personal communication में पहला point होगा personal selling. Second point telemarketing. Third one is customer service, and the fourth one is word of mouth. Next लिखिए advertising. Advertising तो सबको ही पता होगा advertising में कौन कौन से point होंगे। Broadcast होगा, प्रिंट होगा, ब्रॉडकास्ट इज समथिंग जो टेलीविजन वगैरह में दिखता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ब्रॉडकास्टिंग, राइट? टेलीविजन में जो दिखता है ब्रॉडकास्ट। सेकंड इज प्रिंट, थर्ड वन इज इंटरनेट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एक हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेल। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है? एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज मैम इसमें सेकंड क्या बोली? ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट कराना, जर्नल्स में प्रिंट कराना। द थर्ड वन इज इंटरनेट, एंड फोर्थ वन इज डायरेक्ट मेल। सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में जरूर प्रेजेंट रहिएगा, मैं पहले बता दूं। आई विल रिपीट ऑल द टॉपिक्स व्हाट एवर आई थॉट टुडे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स प्रमोशन में क्या क्या चीजें होंगी? सैम्पलिंग, ठीक है? सैम्पलिंग, कूपन, कैशबैक, फिर गिफ्ट हो गए, ये सारे इसमें आ जाएंगे आपके सेल्स प्रमोशन में। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन। अब इसमें आप किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कौन कौन चीजों को यूज कर सकते हैं आप? पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन में क्या क्या चीजों को आप यूज कर सकते हो? प्रेस रिलीजेस, यानी प्रेस रिलीज करवा सकते हो आप, प्रेस रिलीज, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करवा सकते हो, कोई स्पेशल इवेंट्स वगैरह करा दिया, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे ट्रेड फेयर वगैरह में आपने अपने प्रोडक्ट को शो किया, ठीक है? कोई स्पेशल इवेंट वगैरह, जैसे बहुत सारे मोबाइल फोन के लिए जब लॉन्च होता है तो उसके लिए इवेंट्स होते हैं, तो लाइक स्पेशल इवेंट्स कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज, राइट? एंड उसमें आप कुछ सिलेक्टिव कंज्यूमर्स को भी बुला सकते हो, या फिर आपके जो लॉयल कंज्यूमर्स है, यू कैन आस्क देम टू कम, राइट? यू कैन इनवाइट देम। So personal releases, personal conference, special events, trade fairs, ठीक है? Trade shows and exhibitions. Next is trade shows and exhibitions. सबको पता है ना क्या होता है? ट्रेड फेयर, बुक फेयर तो लगता है, दैट इज द स्पेशलिटी एग्जीबिशन जिसमें सिर्फ बुक्स रहते हैं। बहुत सारे एक्सपो वगैरह के भी ट्रेड फेयर्स वगैरह लगते हैं, जिसमें आपके प्रोडक्ट और मशीनरीज वगैरह को क्या किया जाता है? शो किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है। तो ये हो गया आपका पहला जो था, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन, जहां पर एक तरीके से पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है। 1 मिनट कोमल,
जहां पर पर्सनल कम्युनिकेशन है वहां पर क्या क्या चीजें हो रही है पर्सनल कम्युनिकेशन में, यहाँ पर पर्सनल सेलिंग जहाँ पर इंटरेक्शन डायरेक्टली हो रहा है, सेकंड टेली मार्केटिंग यानी टेलीफोन के थ्रू हो रहा है, नेक्स्ट वन इज कस्टमर सर्विस ऑप्शन इज देयर बिकॉज सर्विसेज कस्टमर सर्विस एंड वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि कोई अपने आप जो है कम्युनिकेट करे, एक इनफॉर्मल वे हो गया वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट वन इज एक और चीज आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि अभी एडवर्टीजमेंट में भी क्या होता है कि एक दूसरे कंज्यूमर्स को शो किया जाता है और वो अपने एक्सपीरियंस को बताता है बाकी कंज्यूमर्स को, है ना, दे आर बेसिकली टेलिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट हाउ दे गेट बेनिफिटेड। तो एडवर्टीजमेंट में और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट हो सकता है, नेक्स्ट आप प्रिंट मीडिया यूज कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मेल यूज कर सकते हो, इंटरनेट यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन, कूपन्स हो गया, फिर आपके सैम्पलिंग हो गए, कैशबैक हो गया, गिफ्ट हो गया, ठीक है, लॉयलिटी पॉइंट्स वगैरह भी, रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह भी होते हैं आपके सेल्स प्रमोशन में। नेक्स्ट इज पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पब्लिक रिलीज वगैरह, स्पेशल इवेंट्स वगैरह करवाया आपने, लॉन्च के लिए कोई पर्टिकुलर इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाना, ठीक है। ट्रेड एग्जीबिशन या फिर बोल सकते हैं कि आपके फेयर्स, ट्रेड फेयर्स वगैरह, ये सब पब्लिक बेसिकली पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन के लिए। यस कोमल, बर्थडे कार्ड पब्लिसिटी या पब्लिक रिलेशन में आएगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है कोमल। मैम बर्थडे कार्ड, हाँ बिल्कुल आ सकता है आपका सेल्स, ये बेसिकली पब्लिक रिलेशन का पार्ट होगा जहां पर आप बेसिकली कंज्यूमर के साथ क्या करो, रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। यू विल सेंड द गिफ्ट, यू कैन सेंड व्हाट वी कैन से बर्थडे कार्ड्स वगैरह। जैसे मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेरा अकाउंट था, तो आई गॉट दैट पर्टिकुलर मैसेज दैट ऑन माय बर्थडे आई गॉट दैट दे आर बेसिकली wishing me birthday. So these are comes under the public relations. Okay, next sales promotion is something which is related with the increasing the sales. जब आप sales को increase करना चाहते हो तो जब आप sales promotion technique use करते हो short term के लिए, not for the long term, that is known as sales promotion. जैसे अभी मैंने एक ऐप ओपन किया, जैसे डॉक्स ऐप, what I saw that in 1900 I will get the gold membership. Like that cost 2700, but now it is I just need to pay 1900 rupees. So all these things, all type of benefits which is for the short term, that is comes under the sales promotion. Clear हो गया कोमल? yes next point is some instruction material, यानी communication की बात कर रहे हैं तो some instruction material also we just need to consider this point. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, जैसे आप वेबसाइट में चीजों को डाल सकते हो, वेबसाइट में, फिर मैनुअल्स वगैरह, फिर ब्राउचर्स वगैरह। नेक्स्ट आप कुछ वॉइस मेल वगैरह डाल सकते हो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू जहां मास बहुत सारे लोगों को एक साथ कवर करेंगे। सेल्स प्रमोशन फॉर इंक्रीजिंग द सेल, वी जस्ट नीड टू कम्युनिकेट अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट विच इज ऑफरिंग बाय द सर्विस फॉर्म, ठीक है। तो सर्विस सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन के लिए व्हाट विल डू, विल जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट द कंज्यूमर बट वाया यूजिंग द मीडिया को यूज करते हुए, या तो फिर कुछ ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन को यूज करना, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू फॉर पब्लिक रिलेशन एंड फॉर द पब्लिसिटी वी कैन यूज दिस। फॉर द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज द वेबसाइट, ठीक है, वी कैन यूज द मैनुअल्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ब्राउचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, वॉइस मेल वगैरह यूज कर सकते हैं। एंड द फाइनल जो आपका होगा उसमें आप लिखिए कॉर्पोरेट डिजाइन, यानी और किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट डिजाइन में क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें लिखिए साइनेज, इंटीरियर डेकोर यानी डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोर,
अदर इक्विपमेंट जो फिजिकल एविडेंस में होता था, आपके अदर इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स वगैरह को आप यूज कर सकते हो। व्हीकल्स वगैरह में आप एडवर्टीजमेंट के लिए आप पोस्टर्स वगैरह लगवा सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म्स हो गया, इसमें इक्विपमेंट्स हो गए। जो आपके फिजिकल एविडेंस में थे वही वी कैन यूज एज अ कॉर्पोरेट डिजाइन। कॉर्पोरेट डिजाइन में क्या क्या चीजें आएंगी? साइनेज आएगा, इंटीरियर डेकोर आएगा, व्हीकल्स आ सकता है, इक्विपमेंट्स आ सकता है और यूनिफॉर्म्स आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म के तो एलिमेंट्स आएंगे ही, साथ साथ में सर्विस है तो इसमें कुछ कुछ और चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे आपके कॉर्पोरेट बेसिकली डिजाइन वगैरह कैसे कर सकते हो आप कम्युनिकेट करने के लिए। बिकॉज सर्विस है तो हमें एग्रेसिवली एडवर्टीजमेंट करना तो पड़ेगा ही, बट एडवर्टीजमेंट पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो जितना पॉसिबल हो पाए हमें अलग अलग इक्विपमेंट्स को, अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज करना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए अबाउट द सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, राइट। So what we can use, like we can use a public conference, media use कर सकते हैं, internet, social media, direct mail, telemarketing, newspaper, journal, ठीक है। उसके अलावा you can also use signage, uniforms, each from each and every ways, like by each and every strategy, the consumer are basically communicating with the company is communicating with the consumer. लेकिन एवरी वेज कंपनी जो है किससे कम्युनिकेट कर रहा है? कंज्यूमर्स के साथ, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली, ये सारे क्या होंगे? आपकी कम्युनिकेशन मिक्स होंगी। लास्ट क्लास में मैंने एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन वगैरह बता दिया था। पर्सनल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें, पर्सनल सेलिंग, टेलीमार्केटिंग, वॉइस मेल, ये सब कुछ इसमें आ सकता है, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन में आप कस्टमर सर्विस, टेलीमार्केटिंग, कस्टमर ट्रेनिंग लिखा था आप लोगों ने, कस्टमर की, ये सब कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा जहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। एडवर्टीजमेंट जहां पर हम मास कंज्यूमर को एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट। सेल्स प्रमोशन फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, मतलब बहुत ज्यादा सेल इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें, इसके लिए बेसिकली अपने रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए वी विल यूज द सेल्स प्रमोशन टेक्निक। Publicity is something where we can use some legal and formal thing like media form use करेंगे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और हम कुछ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ट्रेड एग्जीबिशंस वगैरह लगते हैं, वहां पर भी वी कैन बेसिकली सेल द प्रोडक्ट और वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे फेस्ट वगैरह में आप जाओगे तो वहां पर ऐसे छोटा सा काउंटर होता है, काउंसलिंग काउंटर इज देयर and they are talking about the MBA colleges and other colleges, right? So these are basically क्या कर रहे हैं वो, एक तरीके से they are promoting and communicating about the services, right? So यहाँ पर जो public relation and publicity, जहाँ पर एक formal way मीडिया को यूटिलाइज किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए, साथ साथ में और भी क्या चीज हम यूज कर सकते हैं? बेसिकली we can use the trade fairs and all, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आएगा, दैट इज इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, दैट बिफोर यूजिंग और कंज्यूमिंग द सर्विसेज वी जस्ट नीड टू गिव द इंस्ट्रक्शन अबाउट दैट पर्टिकुलर सर्विसेज, अबाउट द फैसिलिटीज अवेलेबल, अबाउट द टाइमिंग एंड अबाउट द ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कॉलेज में एडमिशन से पहले क्या देखते हो? प्रोस्पेक्टस देखते हैं, सारे इंफॉर्मेशन उसमें होते हैं अबाउट हॉस्टल, अबाउट फी स्ट्रक्चर, about teachers, everything, every kind of information you will get through that prospectus. So that is a instructional material. वो एक instructional material है जहां पर आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आप जो कंज्यूम करने वाले हो उसके बारे में सारे डिस्क्रिप्शंस गिवन होंगे। क्लियर हो गया? इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या कर सकते हो आप? वेबसाइट वगैरह में, यानी ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे, you will get all type of information, notices regarding to that, right? So you can use the website, official website you can use for communicating about the services. Like if I will open, अभी तुरंत में अगर जैसे कोई कॉलेज का नाम बताओ, मैं ओपन करूंगी, I'll get at the time official website. So that is, वहां से आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, मैनुअल्स वगैरह, ठीक है, ब्राउचर्स, प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वॉइस मेल वगैरह। तो ऑल दीज आर बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। अभी कोविड के लिए आप लोग देखते होंगे, जैसे फोन घुमाते होंगे, यू विल गेट वन वॉइस, आप लोग को मैसेज मिलता था अबाउट द कोविड एंड अबाउट ऑल द इंस्ट्रक्शन, है ना।
तो दैट इज द इंस्ट्रक्शन मटेरियल और कम्युनिकेशन के लिए कंपनीज ये भी यूज करती हैं. नेक्स्ट जो है कॉर्पोरेट डिजाइन, हाउ यू विल कम्युनिकेट विदाउट सेइंग अ वर्ड, मतलब बिना कुछ कहे आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो साइनेज वगैरह से, यूनिफॉर्म से, इक्विपमेंट से, बिल बोर्ड, या फिर बोल सकते हैं ये सब चीजों से, कॉर्पोरेट डिजाइन से भी आप क्या हो सकते हैं बेसिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं और उस तरीके से बेसिकली कंपनी क्या करी, कम्युनिकेट करे अबाउट द सर्विसेज. क्लियर हो गया? डन. Yes, ma'am. Okay. So in last class, I think we discussed till question number 11 or question number 13, I guess. है ना? So today we just need to discuss about these. Which of the following statement pertain to inseparability is false? As customer contact increases, the efficiency of the firm decreases. Customers can affect the type of service desired. Customers can affect the length of the service transaction. Customers can affect the cycle of demand. Which of the following statement pertain to inseparability is false? What will be the answer? Raise your hand. Yes, Soshi? Ma'am, A. Yes. As customer contact increases, the efficiency of the firm decreases. This is the false statement. ठीक है? Inseparability के साथ it is not suitable. Next question. In addition to the traditional 4 P's, the service marketing mix includes people, physical evidence, and inseparability, planning, production process. Raise your hand. In addition to the traditional 4 P's जो चल ही रहा था, the service marketing mix include people, physical evidence, and inseparability, planning, production process. Yes, Soshi? Process. Shivani? Process, ma'am. Shubhangi? Process, ma'am. Komal? Process, ma'am. Okay. So the answer is Akshay? The answer is process. Next question. Distinct characteristic of services. Characteristics तो आप लोग कभी भूलोगे ही नहीं, मुझे लग रहा है. इतने questions कर लिए हम लोगों ने इससे, है ना? Distinct characteristic of services. Yes, Soshi? Intangibility. Yes, the answer is intangibility. ठीक है? Distinct characteristic of service, distinct from the goods. Question number 17. The unique service characteristic that deals specifically with the inability to inventory services is inseparability, intangibility, homogeneity, perishability. Yes, Koshi? Perishability. Anyone else? Anyone else? Perishability, ma'am. Yes, the answer is perishability because it is related with the inventory. When we are talking about inventory stock, then it is related with perishability. Which of the following? Achha, this question is incomplete. Okay. Next question. Customer satisfaction can be defined by comparing. I think we already completed this question. Predicted service and predicted services and perceived services. Yes, Komal. And C. Answer is good. Okay. Next question. The demand strategy in which service provider utilize their downtime by marketing to different segments with different demand pattern is associated with which of the following? The use of creative pricing strategy, the use of reservation system, capacity sharing, and developing complementary services.
The demand strategy in which service provider utilize the downtime by marketing to different segments with different demand pattern is associated with which of the following? The use of creative pricing strategy, reservation system, capacity sharing, and developing commentary services. Answer is yes, Toshi. Ma'am, C. Yes, capacity sharing. Take a demand is related with capacity sharing. The dash dimension is an assessment of firm's consistency and dependability in service performance, empathy, responsiveness, assurance, and reliability. The dash dimension is an assessment of firm's consistency and dependability in service performance, empathy, responsiveness, assurance, and reliability. Raise your hand. Yes, Abhishek. Ma'am, D option, reliability. Next, Akshay. Next, Toshi. Ma'am, reliability. What is the meaning of reliability, Toshi? Ma'am, quickly. एक मिनट. मैम, जिसमें जो भी कस्टमर का मांग है उसको तुरंत पूरा करना है ना. What is the meaning of reliability? Abhishek. The answer is assurance. The answer is assurance. Next question. I will tell you about that. Which of the following would not be considered a tangible clue? कौन सा tangible clue नहीं होगा? The appearance of employees, the appearance of firm physical facilities, the smile on an employee's face, the quality of instruction in an educational setting. Yes, Komal. Ma'am, C. Next. Answer is D. The quality of instruction in an educational setting. Instruction जो होगा वो होगा इसमें answer. The smile of employee's face will be not be the answer. इसमें answer होगा educational setting. ठीक है? I think communication mix is done. वो complete हो गया. But उसमें हमको points लिखना है कुछ. बाकी I think that is already completed. और मुझे देखिएगा अगर कुछ communication mix में और कुछ